من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، یہ اسلامی فقہی مسائل اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ جو آپ احباب کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی ہے قربانی کے مسائل میں کہ قربانی کے جانور، قربانی کا وقت اور قربانی کا جو ہے کی جگہ کہاں پہ قربانی ہونی ہے، یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جو ہے قربانی کرنے کا طریقہ، آج کا مسئلہ ہے ہمارا قربانی کرنے کا طریقہ۔ احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے کے دو طریقے اس سے جو ہے ثابت ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بھی قربانی کرنے کے یہ دو طریقے اس سے ثابت کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے نحر کرنے کا، نحر کرنے کا طریقہ، اور یہ اونٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربوں کے یہاں اس کا جو ہے استعمال رہا، اس طریقے سے نحر کیا جاتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز آئی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ جو ہے نحر کرنا، نحر یہ جگہ ہوتی ہے جسم کی، اور یہاں پر اونٹ کی اس جگہ پر جو ہے جب کوئی تیز جو ہے آلہ لے کر کے وہاں پر اس کو نحر کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ کاٹ کر کے اندر تک جو ہے اسے گھسا دیا جاتا ہے، جس سے بڑی تیزی کے ساتھ خون بہتا ہے، تو اسے نحر کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اونٹوں کے بارے میں کہ ان اونٹوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ان پر اللہ کا نام لو، صف میں کھڑا کر دو اور اللہ کا نام لو۔ تو اونٹوں کو جو نحر کیا جاتا ہے، جیسے دوسرے جانوروں کو لٹا کر کے گردن کاٹی جاتی ہے، اونٹوں کو اس طریقے سے جو ہے ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ بڑا جانور ہے، اس کو زمین پر پٹک کر کے اور اسے ذبح کرنا شاید جو ہے تھوڑا مشکل بھی ہو، تو اس کے لحاظ سے اس کا طریقہ یہ کہ اس کو نحر کر دیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے ہی اس کو نحر کر دیا جاتا ہے، اور یہی اس کی قربانی کا طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں ابھی ہم نے قرآن کی آیت بھی سنائی آپ کو، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، احادیث میں باقاعدہ اس کی وضاحت بھی آئی ہوئی ہے۔ صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اونٹ کی قربانی کرنے جا رہا تھا، اور اس نے اس کو بیٹھا رکھا تھا، تو آپ نے کہا کہ ابعثها قیاما مقیدتا سنت محمد،
अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये हदीस मरवी है कि उनका गुजर हुआ था, यानी अब्दुल्ला इब्न उमर का, अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का गुजर हुआ। और जब वो गुजर रहे थे तो गुजरते हुए उसने एक आदमी को, अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक आदमी को देखा कि वो ऊंट की कुर्बानी करने जा रहा था और ऊंट को बैठा रखा था। तो उन्होंने कहा उससे कि इबासहा क़ियामन मुक़य्यदतन, खड़ा करो उसको, ऊंट को खड़ा करो, उठा दो उसे और बांध दो। मुक़य्यदतन सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका तरीका यही है। मजीद इसकी वजाहत सुनन अबी दाऊद और सुनन बैहक़ी की रिवायत से ये होती है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबहु कानू यनहरून अल बुदना माक़ूलतल युसरा क़ाइमतन अला मा बक़िया मिन क़वाइमिहा, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ये ऊंट को नहर करते थे। मैंने अभी नहर की बात आपके सामने की कि उसको जो है हलक पर काटने के बजाय नहर जो जगह होती है वहां पर जो है तेज जो है तलवार से या तेज जो है चाकू छुरी से बहुत तेज धार वाले वहां पे उसको काटा जाता है, अंदर जो है वो घुस जाता है और इस तरीके से वहां तेजी से खून बहना जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो कहा, रिवायत में ये जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, आपके साथी, ये जो है ऊंटों को कुर्बानी नहर करते थे माक़ूलतल युसरा, इस हाल में कि उनका बायां पैर बांधा हुआ होता था। यानी आगे का जो है, आगे के जो दो पैर हैं ऊंट के, उसमें से बायां पैर जो है लेफ्ट साइड का बायां पैर उसे घुटने तक बांध देते थे और तीन पैर पर उसे खड़ा रखते थे ऊंट को, और इस तरीके से उस हालत में नहर कर दिया करते थे। यानी अभी हमने कहा कि नहर की जगह पे वो छुरी से जो है काट देते थे, अंदर तक जो है हाथ से बड़ी ताकत से करना पड़ता है, अंदर तक हिम्मत भी होनी चाहिए उसके लिए, आसान नहीं होता है ये। कोई साहब जो है ऊंट की गर्दन को पकड़ करके उस पे जो नुकेल वगैरह रहती है वो पीछे की तरफ किए रहते हैं और ये बड़ी तेजी के साथ वहां पर जो है बड़ी ताकत के साथ जब नहर के पास, नहर जो जगह है नहर जो है वहां पे काट देते हैं, खून बड़ी तेजी से बहता है। उसके बाद खुद जो है जानवर कमजोर हो जाता है और ये जो है ऊंट कमजोर हो जाता है, कमजोर होकर के खुद ही गिर पड़ता है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फइज़ा वजबत जुनूबुहा, फइज़ा वजबत जुनूबुहा, ऊंटों के बारे में कि जब इन ऊंटों के पहलू जमीन पर लग जाए तब जो है अब उसके बाद जो है उनकी चूंकि कुर्बानी हो चुकी होती है तो खाल वगैरह निकाल करके, गोश्त निकाल करके अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खुद भी खाओ और जो है जो लोग जो है सवाल करते हैं और जो सवाल नहीं करते उन सबको भी जो है खिलाओ। तो ये बात थी नहर करने की। कुर्बानी का तरीका ऊंट के ताल्लुक से ये है कि ऊंट को नहर किया जाता है और जो दूसरे जानवर हैं उनको ज़बह किया जाता है। ज़बह का जिक्र भी कुरान में आया हुआ है, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ये बनी इसराइल के किस्से में इसका जिक्र आया हुआ है, कुर्बानी में नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और अहादीस में भी ये जिक्र है, ज़बह के लफ्ज का जिक्र है। अहादीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान ज़बह क़ब्ल अन युसल्ली औ क़ब्ल अन नुसल्ली क़ब्ल अन युसल्ला औ क़ब्ल अन नुसल्ली फलयज़बह मकानहा उखरा, कि जिसने
हमारे नमाज पढ़े जाने से जो है, नमाज के पढ़े जाने, नमाज के अदा करने से पहले जिसने कुर्बानी कर लिया, जिसने जो है ज़बह कर दिया, या ये कि हमारी नमाज के, हमें नमाज जो है, हमें नमाज पढ़ने से पहले, यानी हम नमाज पढ़ लें उससे पहले जिसने जो है ज़बह कर लिया, तो उसकी जगह पर दूसरे जानवर को ज़बह करे। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका भी रहा है, आपका ये अमल भी रहा है कि आपने जो छोटे जानवरों को ज़बह किया है, ऊंट के अलावा दूसरे जानवरों को आपने ज़बह किया है। तो इस सिलसिले में कब्श के ताल्लुक से रिवायत आती है, मेढे के ताल्लुक से रिवायत आती है कि वह अखज़ल कब्श व अज़जअहु सुम्मा ज़बहहु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्श को, मेढे को आपने पकड़ा और उसे लिटा दिया जमीन में, और उसके बाद उसको लिटा करके ज़बह किया। तो इसमें ज़बह का जिक्र है। ज़बह में हलक, ये जो है हिस्सा काटा जाता है जानवर का, ये जो है इसको ज़बह कहते हैं। जब यहाँ काटते हैं आप देखेंगे ये हिस्सा रहता है, यहाँ पे थोड़ी सी हड्डी रहती है, वहीं के पास वो हिस्सा, वहां से काटेंगे तो बड़ी आसानी से ज़बह होता है। तो ये जो है ज़बह का भी जो है जिक्र आया हुआ है, और नहर का जिक्र जो है ऊंट के बारे में आया हुआ है। तो ये दोनों तरीके साबित हैं, यानी ऊंट को नहर किया जाएगा और दूसरे जानवरों को ज़बह किया जाएगा। और ऊंट के नहर के ताल्लुक से भी ये तफसील आई हुई है कि उसको 3 पैरों पे खड़ा रखा जाए, और आगे का जो बायां पैर है उसको घुटने के पास बांध दिया जाए, 3 पैरों पर खड़ा रखा जाए, और नहर के पास छुरी से उसको जो है मारा जाए तेजी के साथ, जिससे छुरी अंदर तक जाए और तेजी के साथ खून बहना शुरू हो जाए। ज़बह के बारे में ये तफसील भी आई हुई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बह करने के वक्त में जब जानवर को जमीन पर लिटाते थे, तो उसके जो है चेहरे को यानी जो है किबले की तरफ कर लेते थे, किबले की साइड में। वैसे जो है चेहरा तो ऊपर रहेगा ज़बह करने के टाइम में, लेकिन किबले की साइड में उसको कर लिया करते थे। और किबला अगर इस साइड में है, ये साइड जो है किबला अगर है, तो उसका सर इधर, और पैर जो है ये पैर वगैरह सब जो है किबले, पहलू के बल लटाएंगे ना, तो जो है वो पैर जो है किबले की साइड में आता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही जो है जानवर को लिटाया और पहलू के बल लिटाया, चेहरे की तरफ उसका जो है सर रहा, सर नहीं बल्कि चेहरा रहा, और सर तो जो है ये साइड, ये किबला है, तो ऐसे जो है जानवर रहेगा, सर ये साइड है और बकिया जो है पैर जो है ये साइड, जो है पीछे का हिस्सा ये साइड, तो जो है पैर जो है उसी साइड में पड़ेगा, क्योंकि बाएं पहलू पर जब लटाएंगे जानवर को तो उसकी कैफियत यही बनती है। और किबले का भी ख्याल करते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका है। वैसे कैसे भी जो है उसको जमीन पर लिटा करके ज़बह करेंगे तो ज़बह तो हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो आपने ज़बह किया है, वो मैं आपके सामने अहादीस की रोशनी में बता रहा हूँ। हदीस इस सिलसिले में एक आती है कि सही मुस्लिम की यह हदीस है कि वह अखज़ल कब्श फअज़जअहु सुम्मा ज़बहा, कि आपने मेढे को पकड़ा, उसको जो है लिटाया, पहलू के बल लिटाया। बाज रिवायतों में ये जो है जिक्र है कि पहलू के बल लिटाया और लिटा करके फिर ज़बह किया, जबकि एक रिवायत में ये भी बयान है कि वादिअन क़दमहु अला सिफ़ाहिहा, उसके जो है जानवर के जो है पहलू पर आपने अपना पैर भी रखा, पैर भी रखा। ये सब क्या है, ताकि जानवर जो है
उठ करके भागे नहीं, वो काबू में रहे। तो ये उसके ज़बह करने में ये आसानी होती है। जानवर को जो है ज़मीन पर लेटा करके पहलू पर उसका जो है उसके पहलू पर अपना पैर रख लें। पैर क्या होता है? घुटना होता है, समझ लीजिए। घुटना उसके ऊपर आता है और जो है घुटना उसके ऊपर रख करके एक हाथ से उसका जो है मुंह पकड़ करके, एक हाथ से छुरी ले करके और जो है बड़ी ताकत से जितनी जल्दी जो है और उसको काट देंगे उतनी ही कम तकलीफ होती है जानवर को। और ये जो है शरीयत के अंदर हुक्म भी है, अहादीस में इसके बारे में जिक्र भी है कि जब तुम ज़बह करते हो तो अच्छी तरह ज़बह करो, जानवर को कम से कम तकलीफ पहुंचे। ये तरीका है ज़बह करने का। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ज़बह के बारे में तफसीलात आई हुई है, वो तफसीलात मैंने आपके सामने जो है जिक्र कर दिया कि जो है किस तरीके से जानवर को बाएं पहलू पर लेटा करके और अपने पैर को उसके जो है पहलू पर रख करके, अब ऊपर का जो हिस्सा है उसका उस पर रख करके एक हाथ से उसकी जो है उसका जो है मुंह को पकड़ करके और दूसरे हाथ से गर्दन पे छुरी फेर दिया करते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप खुद जो है ज़बह किया करते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये ज़बह करना खुद साबित है, आप खुद ज़बह करते थे। इसीलिए ये बात भी कही जाती है कि कोशिश ये करना चाहिए कि जिस आदमी की को जो है कि कुर्बानी है वह खुद अपने हाथ से ज़बह करे। जो है जितना जो है अपने हाथ से ज़बह करेगा उतना ही बेहतर है। और सबसे बेहतर तरीका उसका यही है कि अपने हाथ से ही आदमी कुर्बानी करे। हाँ, अगर कोई आदमी अपने हाथ से नहीं कर सकता, बहुत कमजोर है या छोटा है अभी और उसको जो है कुर्बानी नहीं कर सकता, या ये कि जो है बहुत उसे डर लग रहा है और उतनी हिम्मत नहीं है, तो ये कोई जरूरी भी नहीं है। ये याद रहे कि कोई जरूरी भी नहीं है। और ये जो लोगों में हमारे मशहूर हो गया है कि खामखा की जो है कुछ शक्लियात हमारे अंदर जो आ गई हैं, बेकार की चीजें आ गई हैं, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देखेंगे कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि बच्चा है तो चलो थोड़ा सा जो है वो कसाई और उसका हाथ थोड़ा सा लगा करके उसके बाद पकड़ करके, ताकि अगर बच्चे को खुश करना है तो बच्चे को खुश करने के लिए जानवर को मजीद तकलीफ पहुंचाना ये सही नहीं। कोई बात नहीं है, अगर कोई आदमी खुद से कुर्बानी नहीं कर सकता, ज़बह नहीं कर सकता, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है, आप करते रहे हैं अपने हाथ से कुर्बानी। तो अगर कोई शख्स अपने हाथ से कुर्बानी करता है तो ये अच्छी बात है, सुन्नत है, और सुन्नत की नीयत से ये करता है तो उसको उसका अजर और सवाब भी मिलेगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है और ऐसी चीज़ भी नहीं है कि खामखा किसी को परेशान करके ला करके, वो नहीं बेचा रहा है तो जबरदस्ती उसका हाथ लगवा करके, और ये जो है जानवर को पहले से जमीन पे लिटाए हुए इसको पकड़ के लाओ, नहीं आप थोड़ा सा पकड़ लो, आप ये करो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से हमारे जो है यहाँ ये भी जो मशहूर हो गया है कि जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है वो वहां पर आकर के खड़ा हो जाए, वहां करके खड़ा हो जाए। ये बाज लोगों के यहाँ ये चीज जो है मशहूर है बाकायदा। अब किसी औरत की तरफ से कुर्बानी हो रही है तो वो भी जो है आकर के वहां पे खड़ी हो जाए, जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है उसको भी आकर के वहां खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, इसका भी कहीं कोई मसला नहीं है। बाज लोगों ने तो यहाँ तक समझ लिया है और यहाँ तक समझते हैं कि बाकायदा जो है औरतों को बुला करके, अपनी बच्चियों को बुला करके कुर्बानी करवाते हैं कि यही तरीका है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहाँ की बात कहाँ ला करके लोग पेश करते हैं। बात सिर्फ ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि अगर कोई औरत भी ज़बह करे तो जैसा पहले लोग समझते थे कि औरत अगर ज़बह कर दे तो उसको खाते नहीं थे, औरतों के ज़बीहे को मकरूह समझते थे, तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। औरत के ज़बह किए हुए जानवर को भी खाना जायज़ है।
ایک مرتبہ میرے سامنے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی تھی. میں نے کہا بھائی کہاں پر جو ہے یہ حدیث موجود ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی ایسی کوئی حدیث. جو نہیں ایک آپ بڑے جو ہے مشہور جو ہے خطیب کا عالم کا نہیں بجائے خطیب کہنا بہتر ہے، خطیب کا نام بھی لے لیا. جو میں نے کہا اگر آپ کو جو ہے دکھائیے کہ ہاں انہوں نے کیا کہا ہے، کہاں ہے، کیسے کہا ہے. اس کے بعد سے پھر دوبارہ جو ہے وہ کبھی جو ہے انہوں نے نہ لا کے پیش کیا اور نہ ہی اس کو دکھایا. اور خواہ مخواہ جو ہے مشہور کر کے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو لا کر کے نہیں چلو بیٹی تم بھی، خواہ مخواہ فورس کر کے جو ہے ان سے ذبح کرواتے رہے اور جو ہے اس کا ویڈیو بنا کر کے لوگوں کو بتاتے رہے. یہ سب چیزیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں. تو وہاں پر جو ہے کھڑا کرنا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے یہ بھی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عورت اگر ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، یہ حدیث میں بات آتی ہے. ایک حدیث میں یہ بات ہے جس سے جو ہے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے. جو ہے کہ ایک خاتون ایسے ہی جو ہے وہ جو بکریوں کو چرا رہی تھی، ایک جو ہے بکری یا کہہ لیجئے کہ وہی چھوٹے جو جانور ہیں یہ بھیڑ بکری، اس میں سے کوئی جو ہے بیمار پڑ کر کے مرنے کے قریب ہوا تو اس کو اس نے ذبح کر. تو اس طریقے سے وہ ذبح کرنے کی بات جو ہے اس میں آتی ہے. عورتوں کے ذبیحے کو کھانے کے تعلق سے بھی ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو ہے جائز ہے، اور یہ بیان ہے کہ اس عورت کے ذبیحے کو یہ کھاتے ہیں. تو عورت کا ذبح کیا ہوا جانور پرندہ اس کا کھانا جائز ہے. پہلے جو ہے گھروں میں جو مرغیاں وغیرہ لوگ پالتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو مرغی ہے مرغا ہے گھر میں ہے، کوئی آئے نہیں مرد اور کوئی آیا اور مہمان وغیرہ ہیں تو جو ہے عورت نے ہی پکڑ کر کے ذبح کر دیا. عورتوں کی ہمت ہوتی ہے ذبح کر کے جو ہے وہ عام طریقے سے ایسی قربانی کے وقت میں یہ بڑے جانور جو ہے عام طریقے سے عورتیں ذبح نہیں کرتی ہیں، لیکن جو ہے یہ مرغی وغیرہ تو گھر میں وہ بھی جو ہے ذبح کر کے اور جو ہے پکا کر کے جو ہے کھلا دیا کرتی ہیں. تو عورتوں کا ذبیحہ جائز ہے، ان کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں. قربانی کے جانور کو وہ ذبح کرے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن خواہ مخواہ ان کو فورس کر کے لا کر کے ان کو جو ہے وہاں پہ ذبح کروانا اور یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے اور ایسی کوئی بات ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور عام طریقے سے عورتیں قربانی نہیں کرتی تھی، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو ذبح نہیں کرتی تھی، یہ عام طریقہ تھا. اگر ایک آدھ مثال ملے گی تو اس کے جو ہے خلاف مل جائے گی آپ کو، لیکن جو ہے عام طریقہ نہیں، یعنی یوزولی ایسا ہوتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرایا ہو اپنے گھر کی خواتین سے، یا جو ہے آپ کے جو ہے اصحاب نے اپنے گھر کی خواتین سے ایسا کرایا ہو، یا یہ کہ جو ہے عام طریقے سے بات کر رہے ہیں. ایک آدھ مثال کی بات جو ہے نہیں ذکر کر رہا ہوں، میں عام مثال کی بات کر رہا ہوں، عام جو ہے طریقے کی بات کر رہا ہوں. خلفائے راشدین نے اپنے گھر کی عورتوں سے ایسا کرایا ہو، آپ کو جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں مل جائیں گی. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ خواہ مخواہ کی جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے اسے لے کر کے بہت اچھل جاتے ہیں اور جو ہے اس کو بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ. ایسا کچھ نہیں ہے. عورتیں اگر جو ہے ان کا دل تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ ذبح کریں یا وہاں کھڑی رہے تو خواہ مخواہ ان کو فورس کر کے وہاں لانا، ان سے ذبح کروانا، یہ جو ہے غیر ضروری چیزیں ہیں جو ہے. اور اس کی طرف بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ اس پر فورس وغیرہ کرنا یہ جو ہے غیر ضروری چیز ہے شریعت کے لحاظ سے. ایسا کرنے سے جو ہے بچنا چاہیے. تو ہم بات آپ سے کر رہے تھے ذبح کرنے کے بارے میں کہ ذبح جو ہے آدمی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ خود ذبح کرے، یہ بہتر ہے. اور جب یہ جو ہے سوچ کر کے کہ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس لیے ہمیں ذبح کرنا چاہیے اور ہمیں خود ذبح کرنا چاہیے، تو پھر اگر اس جو ہے سنت کے ارادے سے وہ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن یہاں یہ بھی رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ذبح ہی نہیں کرتے تھے، وہ کھال بھی آپ خود ہی اتارتے تھے اور جو ہے پیس پیس اسے کرنے کا وہ بھی. آج کی طرح سے جو یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو اس کے
वो सब तो उस जमाने में नहीं था। वैसे भी तो बकरीद के मौके पर जो है बरसाती मेढक की तरह से बहुत सारे लोग जो है निकल आते हैं और ज़बह करने के लिए छुरी चाकू लेकर के घूमते रहते हैं, और लोग समझते हैं, गनीमत समझते हैं, उन्हीं को बुला करके ज़बह भी करवा लेते हैं, स्किन भी जो है आउट करवा लेते हैं, उनसे जो है पीसे भी बनवा लेते हैं, जबकि वो खुद सही से जानते नहीं रहते हैं। वो जो बहुत प्रोफेशनल है, अब जाहिर सी बात है वो कितने लोगों के पास जाएंगे, उनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। और ऐसे मौके पर पैसे कमाने के लिए बहुत सारे लोग जिनको नहीं भी आता है वो भी मैदान में जो है कूद पड़ते हैं। अब हमें जो है इसका ख्याल करना है कि अगर हम खुद कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है मेरे भाइयों, बेहतर बात होती है। उसके बाद ये भी रहे मेरे भाइयों कि जहां तक हो सके जानवर को ज़बह करने के वक्त में कम से कम उसे तकलीफ हो। बहरहाल ज़बह कर रहे तकलीफ तो होगी ही, वैसे भी मौत तो किसी न किसी दिन जानवर को आनी है, जब भी उसको मौत आएगी तो तकलीफ तो होगी ही। जानवर कोई भी जब अपनी मौत मरता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, ज़बह करने के मुकाबले में उस वक्त उसको बहुत तकलीफ होती है। और अगर वो बीमार पड़ करके ऐसे ही कोई देखभाल ना करे, या कोई देखभाल कर भी रहा है तो कोई इंसान थोड़ी ना है कि वो जो है बता देगा अपने दर्द को और अपने अंदर की तकलीफ को बता देगा। वो बहुत परेशानी, जिन जानवरों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है उनकी जो है आप जाकर के उनके बारे में पता कीजिए कि वो कैसे जो है तड़प तड़प करके मरते हैं आखिर में, तो वो तकलीफ उनकी बहुत ज्यादा होती है। और उसके मुकाबले में ये जो ज़बह किया जाता है उनको ये तकलीफ बहुत कम होती है। आज जो मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए हैं ज़बह करने के मशीनों के ज़रिए से, उसके अंदर भी बड़े मसाइल हैं। उसमें भी जानवरों को बहरहाल जिस तरीके से पूरा जो उसका प्रोसीजर है, पूरा एक सिस्टम है, और जो जिससे गुज़रना पड़ता है जानवरों को, वो भी कोई बहुत आसान नहीं है। हर चीज़ के लिए लोगों ने मशीनें बना कर के और जानवरों को उससे बहरहाल अब जो भी है मामला अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पहले हाथ से जानवर को खड़ा करके दूह लिया करते थे अपने हाथ से, जानवर को इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि अब वो तो हाथ की बात है ना, इंसान का हाथ है वो लगता है और जानवर उसका आदी हो जाता है, उसको उतना कोई मसला भी नहीं रहता है और तकलीफ वगैरह की कोई बात नहीं रहती, क्योंकि ये तो इंसान है, जब देखता है कि अब दूध आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो रोक देगा। लेकिन अभी क्या है कि दूहने के लिए भी, दूध निथारने के लिए भी वो मशीनें सब लगी हुई हैं, वो मशीनें जो है निथारती हैं। बड़े-बड़े जो फार्म होते हैं जानवरों को जहाँ पालते हैं, तो वहाँ इस तरह से जो है काम करते हैं। यही है कि जो बड़े-बड़े एक्सपोर्टर हैं जो है गोश्त वगैरह के, बड़े-बड़े ताजिर हैं, उनके यहाँ भी जानवरों के ज़बह करने का जो तरीका है और जो अंदाज़ होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई जाती है जानवरों। यही नहीं है, मैंने ये भी देखा मेरे भाइयों कि आम जानवरों को छोड़ दीजिए, जो बहुत ज़्यादा हम जो है लोग पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं चिकन, ये चिकन को कितना तकलीफ पहुँचाते हैं। वो जहाँ फार्म हाउस से लेकर के वहाँ से जो है पहुँचाना, दुकानों पर सप्लाई करना, वहाँ उसका ज़बह करना, उसको छोड़ना, ये करना, और किस तरीके से एक दुकान से दूसरे दुकान पर वो पैर बाँध-बाँध करके लटका करके उनको जो है चाय-चाय बोलते रहते हैं, उनको लेकर के जाना, उनको अच्छी खासी तकलीफ़ें पहुँचाई जाती हैं। लेकिन कोई उसके खिलाफ नहीं आवाज़ उठाता है कि भई जो है ऐसी कोशिश की जाए कि इनको तकलीफ ना हो, बरा ज़बह करेंगे तकलीफ तो हुई है, वैसे भी ये चिकन जो है छोड़ दोगे उनको ना, तो उससे ज़्यादा कहीं उनको तकलीफ होगी, क्योंकि ये तो बस यानी कह लीजिए कि बहुत सख्त जान नहीं होते, बहुत मामूली जान इनके अंदर होती है, और ये तो ऐसे ही बहुत जल्दी बड़े कर दिए जाते हैं क्या इनके अंदर जो है, बड़े मज़बूत किस्म के नहीं होते ये। अगर इनको छोड़ा जाए और इनकी अपनी मौत मरे, फितरी मौत मरे ये, तो जो है यानी ज़बह ना हो तो ऐसे मरेंगे तड़प-तड़प करके, तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो बहरहाल ये जो है देखा जाता है, इस्लाम ने तो जहाँ ज़बह करने की बात कही है, वहाँ उसके भी बड़े आदाब बताए हैं, और कि कम से कम जानवर को तकलीफ, जानवरों का जो शऊर है उसका ख़्याल किया गया है। यहाँ तक कि जानवरों को बेचने और खरीदने में भी इसका ख्याल किया गया है कि जब जो 2 जानवर आपस में बड़े मानूस हो चुके हों, तो खरीदने बेचने के टाइम में उनको अलग ना किया जाए।
जानवरों में भी एक साथ रहते रहते वो बहुत मानूस हो जाते हैं गुस्से से। अगर आप अलग बेच देंगे, एक को बेचेंगे और एक कहीं और रह गया है तो बहुत बोलता है, अपने जो है जो साथ में रहता है वो अगर साथ में न रहे तो बहुत परेशान करता है, रातों को बोलता है बहुत, जो है अरे बहुत परेशान रहता है, उसको भी बहुत तकलीफ होती है। तो इस्लाम ने तो यहाँ तक ख्याल किया है कि जो इस तरह से जानवर एक दूसरे से बहुत मानूस होकर के हमेशा साथ रहते हैं, उनको एक दूसरे से अलग ना किया जाए। ये जो आपस में भाई भाई बन करके रहना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से उन दो जानवरों को जुदा न किया जाए बेच करके, या तो दोनों को कहीं बेचे, दोनों को बेच दे, एक ही जगह पे रहे। तो ये चीजें भी जो है इस हद तक जो है कम तकलीफ पहुंचाने का, उनको कम से कम तकलीफ पहुंचाने का शरीयत के अंदर लिहाज है मेरे भाई। यहाँ तक कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम ज़बह करना चाहते हो तो अपनी छुरी को अच्छी तरह से ज़बह कर लो, खूब अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लो, खूब जो है तेज करो। कहा कि जो है जितना तेज करके अपने जानवर को ज़बह करोगे उतना ही जानवर को कम तकलीफ होती है। इसीलिए कहा आपने कि अपने ज़बीहे को आराम पहुंचाओ। आराम पहुंचाने का क्या है, ज़बह करने में क्या आराम पहुंचा, ज़बह करने में तो तकलीफ ही होगी उसको जब काटेंगे तो, लेकिन जल्दी से जितना काट देंगे उतना ही जानवर को तकलीफ भी कम होगी। तो कम से कम तकलीफ पहुंचाओ, ये ज़बह का ये उसूल है मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस सिलसिले में एक आम ज़ाब्ता बयान करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ल वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबह वलयुहिद्द अहदुकुम शुफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज पर एहसान लिख दिया है, यानी जो काम भी करना है वो अच्छी तरह से अंजाम दिया जाए। तो उसी की थोड़ी तफसील बयान करते हुए आपने कहा कि जब तुम कत्ल करो, कत्ल से मुराद क्या है कि जो सजा होती है किसी इंसान को कत्ल की, उसने किसी को कत्ल किया है, किसास में उसे कत्ल किया जाना। किसी इंसान को भी जब जो है कोर्ट की तरफ से कत्ल की सजा मिली हुई है तो वो सजा जो है जब किसी पर नाफिज की जाती है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अच्छी तरह से करो, यानी सामने वाले को कम से कम तकलीफ हो, उसको बहुत तकलीफ पहुंचा करके नहीं। ये तकलीफ पहुंचाना शरीयत के अंदर मकसूद नहीं है जब किसी को कत्ल की सजा दी जाती है, बल्कि मकसद ये होता है कि ये सख्त सजा लोग देखें तो उनके दिलों में खौफ पैदा हो और कोई भी शख्स बाद में ऐसी कोई जुर्अत ना करे कि किसी को नाहक कत्ल करे, जिसके नतीजे में उसे भी उस पर भी उससे क़िसास लिया जाए और उसको भी जो है कत्ल किया जाए। तो ये चीज असल मकसूद है वहां पर, जिसकी वजह से ये क़िसास नाफिज किया जाता है, क़िसास की ये सजा नाफिज की जाती है। असल जो है ये बात है, वरना कम से कम तकलीफ हो। और ये भी आपने कहा कि वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबह, जब ज़बह करते हो तो अच्छी तरह ज़बह करो। ज़बह में अच्छी तरह ज़बह करने का क्या मतलब है, उसके बारे में लोगों ने यही कहा, बल्कि आपने खुद भी इसी हदीस के अंदर थोड़ी तफसील भी जिक्र कर दिया और कह दिया कि तुम में से कोई भी आदमी जब ज़बह करना चाहता है तो अपने चाकू को, अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर ले, तेज जो है धार वाली जो है छुरी से अपने जानवर को ज़बह करे ताकि जल्दी से उसकी गर्दन कट जाए। जितनी जल्दी कट जाएगी उतनी ही कम तकलीफ में उसकी जान निकल जाएगी, उसकी रूह निकल जाएगी और इस तरीके से वो तकलीफ उसकी खत्म हो जाएगी। तो कम से कम तकलीफ पहुंचा। आपने ये भी कहा कि वल युरिह ज़बीहतहु, और उसे चाहिए कि अपने ज़बीहे को आराम पहुंचाए, यानी जल्दी से ज़बह करके जल्दी से जो है उसको काम खत्म कर दे ताकि जल्द अज जल्द जो है उसकी जान निकल जाए और उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। ये है, इसी वजह से यहाँ तक कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि फौरी तौर पर उसकी स्किन निकालना नहीं शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, जब तक हरकत हो रही है ना तो रुक जाना चाहिए। क्यों कि फौरी तौर पर निकालें स्किन तो आसान होता है निकालना, गरम गरम अभी जिस्म होता है ना तो तभी निकालेंगे तो बड़ी जल्दी निकल जाता है, बड़ी आसानी से निकलता है। चूंकि हम वो काम के जो है किए हैं कुर्बानी के मौके पर जो है, तो जानवर से की खाल वगैरह खुद अपने हाथ से निकाल चुके हैं, तो हमको भी पता है कि वो जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, जल्दी होता है। और जितना ठंडा होता जाएगा उतना ही जो है खाल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से ये कसाई लोग खास तरीके से वो जल्दी यानी पूरा ठंडा भी होने नहीं देते हैं उसको, और जो है अभी जान पूरे तरीके से निकली भी ना रहे, यानी अभी हरकत भी रहती है, वो पैर वगैरह हरकत करता रहता है और शुरू कर देते हैं जो है। तो ये जो है नहीं करना चाहिए। अभी आप डॉक्टरों से भी पूछेंगे तो बताएंगे आपको कि कुछ देर तक अभी उनको तकलीफ का एहसास रहता है। ये सिर्फ उसका ही नहीं है, वो कुछ बोल रहे जो है इंसानों का भी, जब वो जान उनकी निकल जाती है ना तो मरने के बाद थोड़ी देर तक के लिए और जो है थोड़ा एहसास उनको भी रहता है। ये होता है जो है, ये जानवरों को ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जब खून निकल जाता है ना तो खून निकल जाने के बाद ये एहसास रहने की वजह ये होती है कि अभी जो रगों में खून दौड़ा था, जब तक ये जो हमारी जिंदगी होती है ना, ये खून से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो जब तक वो खून की सप्लाई होती है वो हिस्से जो है जिस्म के काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हमारे दिमाग तक जो खून की सप्लाई है उसके लिहाज से वो दिमाग का काम करता है। तो आवाज वगैरह तो नहीं निकल सकती, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो थोड़ा तकलीफ का एहसास अभी भी रहता है। तो बेहतर यही होता है कि जो है वो जब उसकी खाल उतारते हैं, स्किन आउट करते हैं, तब भी जो है उसका ख्याल रखें कि कम से कम जो है उनको तकलीफ हो, उसके लिए थोड़ा रुक करके जो है खाल निकालें, ताकि उसको ज्यादा जो है उस वक्त फौरी तौर पर शुरू करेंगे तो थोड़ी परेशानी जो है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है जानवर को, क्योंकि अभी हरकत बता रही है। वो पैर जो है ऐसे वो हिलाता रहता है, जब तक वो हिला रहा है पैर हरकत कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, जानवर को उसको हरकत करने देना चाहिए। जितना वो हरकत करता है उतना ही जो है उसका खून बाहर आता है और अंदर से जो है खून बाहर आ जाता है। वैसे भी जब ज़बह करते हैं तो खून तकरीबन बाहर आ जाता है, और बकिया जो है वो जब आप उसको लटकाएंगे स्किन आउट करने के टाइम में तो जो है वो सब जो है बाहर हो जाता है। तो ये जो है चीज है कि हरकत का मतलब ये है कि अभी वहां पर उसको एहसास है और वहां फौरन उसको काटना यानी उसके स्किन जो है निकालना शुरू नहीं करना चाहिए। ये भी जानवर को आराम पहुंचाने का एक तरीका है। और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की बात कही है, उस एहसान का ये हिस्सा है कि उसको इस तरीके से किया जाए। इसी तरह से ये भी कहा गया कि जानवर को ऐसा नहीं कि लेटा करके गर्दन पर जो है पैर रख करके उसको पकड़ करके अब जो है क्या कर रहे हैं, चाकू को तेज कर रहे हैं और जानवर ऐसे पड़ा तकलीफ में रहेगा ना, ऐसे पड़ा हुआ। आप लेटाए हैं तो अब वो तकलीफ में होता है, आप पकड़ करके उसको इस तरह से बैठे, तो इसमें ये भी जो है नहीं करना चाहिए। चाकू वगैरह पहले से तेज करके रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्दन पर पांव रख लिया है अब उसके बाद जो है छुरी लेकर के साफ कर रहा है और उसको तेज कर रहा है और जानवर जो है वो देख रहा है अपनी आंख से ये छुरी ये चाकू, उसको भी तकलीफ होती है इससे। यहाँ तक कि जानवरों के सामने भी जो है उसको तेज नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जो है ये है कि जानवर देखता है तो उसे भी उसको तकलीफ, उसको समझ में आ जाता है ना, इतना तो समझ में आता है कि भाई आप डंडा उठाओगे तो देखेंगे कुत्ता है कोई है तो भागता है। क्यों भागता है? कि वो आपके हाथ में डंडा देख करके वो समझता है कि आप जो है मारेंगे। आपके हाथ में छुरी देख करके जानवर समझता है कि अब उसकी गर्दन पर छुरी फिरने वाली है। तो नहीं, जानवर एक जानवर के सामने दूसरे को ज़बह न करें, इसका भी ख्याल करें। इसमें भी परेशानी क्या है कि अब जो है वो देखता है दूसरे अपने जो है भाई को कि वो ज़बह हो रहा है, तो वो तकलीफ वो महसूस करता है, उसकी वजह से ज़बान से कह तो नहीं सकता। तो ज़बह के ये अहकाम हैं और जो है
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने ज़रिए को आराम पहुंचाए, उनको कम से कम तकलीफ होनी चाहिए, ऐसी कोई शक्ल न रहे जिसकी वजह से जो है उसको तकलीफ हो। इसलिए आपने इससे भी मना किया कि जानवर को घसीटते हुए लेकर के आए और घसीट करके ला करके उसको ज़बह करें, वैसा भी नहीं, बड़े प्यार से लेकर के आओ, कम से कम तकलीफ पहुंचाने की। अभी मैंने आपसे कहा जो ये मशीनों वगैरह से ज़बह करने की बात है ना, और जो है वो उसमें ये चीज़ बहुत होती है, ये जो एक तरह से उनको एक प्रोसीजर से गुज़ारा जो जाता है ना, वो पूरा अधमुआ हो जाता है जानवर उसमें, पहले ही से जो अधमरा हो जाता है। ये बड़ा अजीब मामला है, तकलीफ पहुंचाना होता है उसको, और जो हिदायत है उसके खिलाफ होती है ये चीजें उसमें। तो कम से कम तकलीफ पहुंचाने में ये भी है कि घसीट करके लेकर के ना आए जानवर, आराम से लेकर के आए, जहां पे ज़बह करना है वहां ला करके उसको आराम से जमीन पर लेटाएं। उसके भी तरीके हैं, कभी जो है, अब चूंकि ये चीजें जो है बचपन से देखते फिर करते हुए आए हैं तो मालूम भी है उसका जो है एक खास तरीके से आप पैर को जो है, ये जो कसाई लोग तो ऐसे ही टांग करके ऐसे करके जो है जमीन पे लटका देते हैं, रख देते हैं, लेकिन हम लोग जब करते हैं तो बड़े आराम से उसको जो है आप खड़े होकर के उसका जो पीछे का, यानी आप सिर्फ ऐसे करते हैं तो जो इस पैर को, सामने वाले पैर को नहीं जो आपके हाथ पर आता है, बल्कि उसके पीछे वाले पैर को आराम से पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे उठाइए अपने घुटने पर, उसके उसको जो है रख करके आहिस्ता से जमीन पर हम जब करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि कम से कम जानवर को उसमें तकलीफ, आराम से जमीन पर लेटा करके, दूसरे आदमी कोई हैं तो उनको फौरन कहेंगे भाई पकड़ लो थोड़ा पैर जो है, और जो है ये पकड़ करके अब जितनी देर तक उनको लेटाए रखेंगे ना उतना ही उनको तकलीफ होती है। इसलिए फौरी तौर पर जो है अपना हाथ से जो है उसका मुंह पकड़ा, छोड़ी है, और ये जो है घुटना जो है उसके पहलू पे रखा, और जो है जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वैसे जल्दी से ज़बह किया, तो ये कम से कम तकलीफ पहुंचाना होता है। तो घसीटते हुए जो लेके जाते हैं, ये चिकन वगैरह जो हमने देखा, आपको हमने कहा आपसे कि वो टू व्हीलर पर दोनों तरफ जो है पैर जो है एक 10-10 20-20 जो है कि बांध करके पैर दोनों तरफ ऐसे लटका करके, और जो है टू व्हीलर पर जो है वो करके वो काएं काएं चिल्लाते रहते हैं। जो काएं काएं तो नहीं कहते, तो काएं काएं का तो कौवा जो चिल्लाता है, ये भी जो है इनकी आवाजें होती रहती है, तकलीफें इनको होती रहती हैं, लेके जाते रहते हैं। कहीं कोई जो है ख्याल नहीं है, शरीयत के जो मसाइल हैं उसकी पाबंदी नहीं है। खास तरीके से कसाई लोग जो आम दिनों में भी जो जानवरों को ज़बह करते हैं गोश्त बेचने के लिए, तो उसमें भी वो ख्याल नहीं करते ज़्यादा चीज़ों का, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं उसका हमें जो है ख्याल रखना चाहिए। इस सिलसिले में ये भी याद रखना चाहिए, ये भी जो है करना चाहिए कि बाज़ लोग ज़बह करने के वक़्त में बाकायदा जो है जानवर को पानी पिलाने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं। भाई पानी आप उसके पास रख दो, वो खुद से पिए तो ठीक है। वो लिटाने के बाद जो है ज़बह करने के टाइम में वो पानी लेकर के आओ उसके मुँह में, वो तकलीफ पहुँचाने के अलावा क्या है? हाँ, ज़बह करने से पहले जो है आप वो जो है कहीं भी बाँधे हुए हैं, जहाँ भी है वो, उसके पास ला करके पानी रख दो। अगर उसकी पीने की ख़्वाहिश है तो पी लेगा, नहीं पी रहा है तो नहीं पी रहा है, कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको जो है ज़बरदस्ती पानी पिलाना है। मैंने मुर्गी वग़ैरह को भी देखा था उस दुकानों में, पहले मुँह में पानी डाल करके तब देना। कहाँ से लोग जो है देखे हुए, किसी को करते हुए देख लिया, वैसे तो सब करते आ रहे हैं, समझते हैं कि ये भी शरीयत का हिस्सा है। ऐसे ही हमने देखा कि बकरे को जो है वो कसाई वगैरह ला करके जब पटकने के बाद उसको जमीन पर जो है मुंह खोल करके पानी डालते हैं उसमें। ये जो है आपको खुद भी कोई ऐसे ला करके मुंह में पानी डालेगा तो आपकी हलक पर इस पर उस पर जो आता है तो तकलीफ आपको होगी। आप जो है अपनी तबीयत से पीते हैं तब जो है सही रहता है। ये दवाइयाँ वगैरह जबरदस्ती पिलाई जाती हैं कि आदमी को जो है, वरना जो है जो चीज़ जो है आराम से दी जाती है, सुकून के साथ दी जाती है, आदमी सुकून के साथ उसे खाता है, पीता है, उसमें उसको खुशी होती है। ये ज़बरदस्ती का जो है पानी पिलाने का, ये भी जो है तकलीफ पहुँचाने के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये भी याद रहे कि बाज़ लोग जो है ज़बह करने के वक़्त में बाकायदा जो है
उसको नहलाना, वजू कराना, इस तरह का भी जो है काम करते हैं जानवर के ताल्लुक से। नहलाने का तो बहुत ज्यादा जगहों पर देखा, बिल्कुल उसी वक्त नहीं, थोड़ा पहले जो है अच्छा जो है नहला करके, शायद जो है वो साफ सुथरा जानवर रखने का अगर मसला है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन कुर्बानी से पहले उसको नहलाने का कोई एहतिमाम करना और इसको कुर्बानी का हिस्सा समझना और कुर्बानी के जो है मसाइल में से उसको शुमार करना, ये भी चीज शरीयत में साबित नहीं है। तो इससे भी बचना चाहिए। इस पे सब क्या है, जानवर को खामखा तकलीफ पहुंचाना होता है, तो जायद तकलीफ पहुंचाने की ये शक्लें हैं। कभी जानवर ज़बह करने के वक्त में ऐसा भी हो जाता है कि उसकी गर्दन काटने जाते हैं तो पूरा सर ही कट के निकल जाता है। बड़े जानवरों में कम होता है, लेकिन मुर्गी वगैरह को काटते हुए ऐसा बहुत हो जाता है, तो बहुत से लोग उसे मकरूह समझते हैं और इसीलिए सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या करेंगे बोलिए। ऐसे जो है कुर्बानी के वक्त भी बहुत से ऐसे जो है काल आ जाते हैं उस दिन, जो ऐसा हो गया तो क्या वो मकरूह हो गया, उसका गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। याद रखिए कि अगर सर जो है अलग हो जाए जिस्म से कुर्बानी के वक्त में, ज़बह के वक्त में, तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही आम दिनों में भी जो ज़बह करते हैं जानवर को, जब काटते हैं खाने के लिए भी, तब भी अगर गर्दन अलग हो जाए तो इससे जानवर मकरूह नहीं होता है, उसका गोश्त खराब नहीं होता है और उसका खाना जायज़ है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये मेरे भाइयों ज़बह के बाज़ अहकाम थे जो हमने आपके सामने पेश किए, उसके जो है बाज़ आदाब थे जो हमने ज़िक्र किए। अब ज़बह के ताल्लुक से जो दुआ ज़िक्र की जाती हैं, जो इस तरह के कुछ और भी हैं मसाइल जो ज़बह के वक्त में ख़ास तरीके से लोग उसका एहतमाम करते हैं, तो किस हद तक वो चीज़ें जायज़ हैं या नहीं हैं, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने आएगा। इसी पर आज का ये दर्स खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।